So I find immense pleasure in introducing our honorable chief guest, Professor K.G. Suresh sir. The presence of such a personality in our webinar is a blessing. He is currently serving as a Vice Chancellor of Makhalal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal, Asia's first and India's oldest and largest media university. Also member of CEC Governing Board, UGC, and earlier he served as Director General of IIMC Delhi, Senior Consulting Editor with DD News and Founder Dean School of Modern Media, University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. Editorial Consultant with Asianet News Network, Chief Political Correspondent with Press Trust of India. So this was all about our worthy chief guest, जो कुछ पंक्तियां आपको डेडिकेट करना चाहेंगे. हो ना सका उसको उसके कद का अंदाजा इतना, हो ना सका उसे उसके कद का अंदाजा इतना कि वो सूरज है मगर अपनी जमीन पर झुक के चलता है. So I would like to call upon Professor K.G. Suresh sir. So please have your views. Please give him a big round of applause. Yes. Thank you, Dr. Sarika. Am I audible? Yes, sir. There are still some disruptions. I hope I'm clear. Yes, sir. Okay. Thank you, Dr. Sarika, for that warm welcome and introduction. And I'm really delighted to see so many of my friends here. You know, from Professor Bhanavat to Professor Kaushik, and eminent people in the panel, my fellow panelists like Ashok Tyagi ji, young Ms. Shine Swami ji, and you know, Dr. Anupam Pandey, and of course our media colleague from Delhi, Ms. Sadhana Sharma ji. Pleasure to meet you all at the time, and thanks to you know, all these platforms, Zoom and Google Meets, they have enabled people to connect even in these times of confinement. And congratulations to the Department of Media and Mass Communication, NIMS University, for hosting this very important conference. Should I be bilingual or, it's okay? So in any language you want to do, Hindi or English? Okay, thanks. Now I will tell a professor to speak on his subjects within 15 minutes. Somebody who is used to take no less than 1.5 hours is something. It's a Herculean task, but nevertheless, given my experience in television, I will try to cut short as far as possible because I would also like to listen to all my fellow panelists. Let me, though I would have loved to use on Hollywood also because I have been very closely involved with the film sector, having been in the governing board of Film and Television Institute, Satyajit Ray Film Institute. I've been on the jury of National Film Festivals in Bengaluru. So, but I would today like to confine myself because of the paucity of time to the media alone, in which I have dabbled for over 3 decades. So let me confine myself to that. आपने जो विषय रखा है, it's ethical role of media and entertainment industries. दूसरी मैं पिछले कुछ दिनों से मैं अलग-अलग टीवी चैनल्स में मैं प्रोग्राम्स देख रहा था जहाँ राज्य सरकारों ने कई मिनट के ड्यूरेशन के जो है अपना पब्लिसिटी प्रोग्राम्स उन्होंने क्या-क्या काम किया उसको लेकर डाला है कोरोना काल के लेकर लगभग सभी राज्य सरकारों ने. लेकिन अगर मैं शायद मीडिया से जुड़ा ना होता या मीडिया एजुकेटर नहीं होता तो शायद मुझे पता नहीं चलता कि वो कॉन्सर्ट प्रोग्राम वो पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि सरकारों ने क्या क्या किया है, क्या अच्छे काम किए हैं, उसको लेकर एक तरह से वो विज्ञापन है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन इज ऐसे जैसे न्यूज रिपोर्ट. Earlier we used to have editorials, now we have. So the joke used to be that you needed a, जिसे कहते हैं कि लेंस
to read that it is an editorial. कहीं के कोने में फाइन प्रिंट में जो है वो लिखते थे एडिटोरियल, वरना आपको लगता था कि न्यूज रिपोर्ट है। कुछ लोग जरूर उसको एक फंसते में जाते थे और कुछ फॉन्ट अलग देखा था, पर बाय एंड लार्ज आपको पता ही नहीं चलता। ये तो आप फिल्म इंडस्ट्री में तो खैर खूब जाते हैं, जब अमिताभ बच्चन बागबान में एक कार के शोरूम में जाता है तो वो कार का स्पॉन्सरशिप हो जाता है, वो सब तो खैर एक अलग कहानी है। I don't want to get into that today. But when it happens to media, there is an issue. अगर बागबान में अगर आपने एक कार के स्पॉन्सरशिप को दिखा दिया, वहां जाके वो गाड़ी चला के देखते हैं जहां सलमान खान कार मैनेजर है कार सेल्स, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप न्यूज चैनल्स में न्यूज फॉर्मेट में पब्लिसिटी को कैरी करते हैं तब आप गुमराह कर रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है, पहले भी आपको याद होगा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया था एंड दैट टेकन कॉग्निजेंस दैट आप बाहर के पेज में एक रिपोर्ट होगा एक रैली के बारे में कि वो रैली बिल्कुल फ्लॉप था, लेकिन अंदर एक स्पॉन्सर्ड खबर होगी कि वो बहुत कामयाब। बाहर के पेज में एक खबर आती थी जिसका आपने जिक्र किया, पेड न्यूज, बहुत चर्चा हुई पेड न्यूज, तो वो छपता था कि फलान कैंडिडेट जो है वो इस चुनाव में जीतने के उसके बहुत आसार है। अंदर रिपोर्टर का एनालिटिकल पीस होता था जिसमें ये बताया जाता था कि उसके तो हारने के ही चांसेस है। तो ये सारा तो ये जो पत्रकारिता धर्म निभाने का एक हौसला है वो भी एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है ये कितना जो अंकक वर्ग है, दर्शक वर्ग है, ये इनके साथ हम लोग न्याय कर रहे हैं जाना। देखिए मुझे अभी भी याद है, आप लोगों को भी याद होगा, कई चैनलों में ये सुबह सुबह का स्लॉट जो है, मैं किसी का आज तक को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, वो 12 लोगों को आउटसोर्स कर देते थे और वो आपको कई तरह की बातें बताते थे कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, किसकी खुशबू उनको आती है, फलाने देवता। लेकिन और दोपहर के बुलेटिन में जो है आप उन्हीं के पीछे हाथ धोके पड़ जाते। ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं थी कि आप उनके पीछे पड़ जाते थे ताकि वो दबाव में जाके विज्ञापन दें। तो इस तरह की हमने कई चीजें देखी है और ये कोई शुरुआत से हम देखते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर हम शुरू में यहाँ उपस्थित जो फेलो पैनलिस्ट हैं वो जरूर अवगत होंगे, पहले इसको लिफाफा पत्रकारिता भी कहा जाता है, लेकिन उस वक्त जो है सारा गुनाह का बोझ जो है वो पत्रकारों पर डाल दिया जाता है कि भाई प्रेस रिलीज के साथ एक वाउचर डाल दिया, एक उसके साथ एक गिफ्ट वाउचर डाल दिया या एक गिफ्ट दे दिया जाते जाते या प्रेस क्लब में जो है कुछ लोग आ गए और उन्होंने जो है आपके लिए कुछ व्यवस्था करा ली। ये सब खबरें चलती थी, लेकिन अब तो वो कुछ नहीं है, अब वो सीन पूरा बदल गया। जो जिस प्रकार से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है और कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद देखिए इस बात को कहीं हमको कोई गलतफहमी, लेट अस नॉट हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। जहां मोटिव प्रॉफिट आ जाता है वहां फिर एनेन केनेन प्रकारेण साम दाम दंड भेद मुनाफा कमाना है। तो मीडिया का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो मीडिया प्राइमरली किस चीज के लिए शुरू में स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व मिशनरी मोड में मीडिया को लिया, उद्देश्य था देश को हमें आजाद करना है। उस उद्देश्य से कई लोग स्वतंत्र पत्रकारों ने, अब कल ही हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, तो आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी पत्रकारिता हमने जो है 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने तत्कालीन हमारी जो राजधानी है कलकत्ता, वहां से उन्होंने उदंत वार्ताएं शुरू किया और उसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ बहुत कुछ लिखा, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा दिन चला नहीं पाया था। और उसी के क्योंकि वो पहले इसी तारीख को जो है यानी कि मई 30 तारीख को पहला अंक प्रकाशित हुआ था उस साप्ताहिक का, तो हम हिंदी पत्रकारिता दिवस
लेकिन तब से लेकर जो जर्नी था उसका उद्देश्य कुछ और था। फिर बाद में चाहे कितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकनायक शुरू किया, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन, बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए, नवजीवन शुरू किया। आपके जो है लाला लाजपत राय ने जो है उन्होंने शुरू किया, आपके केसरी शुरू हुआ, और आपका जो है और आप पूरा एक सिलसिला है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है पत्रकारिता का पूरा शुरू किया, यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेजी में जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के ही जो है सृजनात्मकता का, उनका विजन का ही एक देन था, जो जिसके चलते हिंदुस्तान टाइम्स ने यहाँ काम शुरू किया। तो कहीं ना कहीं वो पूरा एक इतिहास हमारा रहा है, जहाँ एक मिशन मोड से हम लोग चलते रहे। उसके बाद जैसे जैसे कमर्शियलाइजेशन शुरू हुआ, जैसे जैसे हमने देखा कि एक सर्विस मोड से इंडस्ट्री जो है वो एक इंडस्ट्री का रूप लेने लगी। इट वाज नो मोर ए सर्विस, इट टर्न्ड इनटू एन इंडस्ट्री, जहां या तो अपने एक एक्सटेंशन की तरह इंडस्ट्रीज ने इसमें काम किया, तो बड़े बड़े प्रेस जैसे हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस, उन्होंने अपना एक प्रॉफिट को कहीं ना कहीं चैनल करने के लिए उन्होंने शुरू किया। तो दूसरी तरफ कुछ इंडस्ट्रीज ने उसको एक उनका एक इंटरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक हथियार की तरह उसको आगे बढ़ाया, और बिजनेस इंटरेस्ट को भी उसके माध्यम से परस्यू करने लगे। और उसी का नतीजा आपने देखा कि न सिर्फ हम टेप न्यूज की बात करते हैं, राडिया टेप की बात करते हैं जो हमारे सामने खुलकर आया, किस तरीके से राडिया टेप्स में हमने देखा कि जो है इवन बड़े बड़े कई पत्रकार इन्वॉल्व थे, उनका नाम उसमें खींचा गया। तो ये एक, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि सीधे सीधे कमर्शियल हाउसेस टुक ओवर। जो कुछ पत्रकार, चंद पत्रकार कर रहे थे, बाय एंड लार्ज पत्रकारों की बड़ी अहम भूमिका रही है जन जागरूकता में, जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाने में। दे हैव बीन प्लेइंग ए प्रोएक्टिव रोल। लेकिन आगे चल के कॉर्पोरेट्स ने अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने ये कहा कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, हम बैठे हैं ना, आप क्यों मुनाफा कमाओगे, हम कमाएंगे। So then they said कि even they started calling up people कि भाई आपका न्यूज भी प्रकाशित करना है तो आप पेड जो है आप उसके थ्रू करिए। उन्होंने इनफैक्ट कंपनीज को, कई कॉर्पोरेट्स को उन्होंने स्वेट इक्विटी ऑफर करने लगे। वो कहने लगे कि भाई आपको हम आपके कंपनी का, आपका आईपीओस, आपका जो भी होगा शेयर, उसको हम प्रमोट करेंगे, इन रिटर्न आप हमको इतना शेयर दीजिए, शेयर होल्डिंग दीजिए। तो इस तरीके से वो प्रमोट होने लग गया। तो जाहिर है कि जब मैंने कहा कि इंटरेस्ट जब वो हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो बहुत चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। सारिका जी आपने दो तीन बातें और कही, मैं बहुत संक्षिप्त में उनकी तरफ भी। देखिए कई बार हमने कहा कि कुछ एक्टर्स की आपने बात कही कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते हैं, और कुछ चैनल्स ने भी जो है इन प्रिंसिपल ये जरूर घोषणा की है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, महिलाओं के संदर्भ में मुझे कई चैनल्स के लोगों ने मुझे बताया कि देखिए अब हम जो है वो जब भी कोई दुष्कर्म की, बलात्कार की घटना होती थी तो एक चेहरा जो दिखाया जाता था कि महिला मुंह छुपा के एक ऐसा एक कैरिकेचर बनाया जाता था, और कुछ भाषा में प्रयोग होता था कि हमने चूड़ियां पहन के नहीं बैठी, विच वाज डेरोगेटरी टू वीमेन, कि भाई चूड़ियां पहनना कोई बुरी बात नहीं है। तो उसको उन्होंने बैन कर दिया। उसमें महिलाओं को जिस तरीके से दर्शाया जाता वो, लेकिन अब यहां आता है कैच 22 सिचुएशन। लेकिन जब वेस्ट और अंडरवियर की एडवर्टाइजमेंट आती है, अंडरगारमेंट्स की एडवर्टाइजमेंट आती है, परफ्यूम के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ऑटोमोबाइल्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया व्हाट इज द पॉइंट इन शोइंग सेमी क्लैड विमेन इन दैट। What have automobiles got to do with it? What have, you know, a man's vest and brief has got to do with, you know, मुझे आज तक समझ में नहीं। अब आप वो सब दिखाएंगे और कहेंगे कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं अपने न्यूज में। आपने विज्ञापन में तो सारा जितना आप काम कर रहे हैं उस पर पानी फेर दिया। आप लगातार दिन रात उसको दिखाते हैं। आप एक दो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो बैलेंस आउट नहीं होता है। यू नो, आपको एथिकल चीजों को आपको रखना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा कि देखिए एनीथिंग
which denigrates the dignity of the women, we will not accept in terms of advertisements also. This is something that has to be. Are we doing? क्या हम किसी तरीके से हम भ्रमित कर रहे हैं क्या अपने पाठकों को? Why can't we? अभी जैसे मैंने कुछ विज्ञापनों की बात कही थी, यहाँ दावे किए जाते हैं. Why don't you put a simple disclaimer? जब आप देखते हैं कि कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि आता है तो कहते हैं smoking is injurious to health. Any resemblance to any character, they are all fictional. Resemblance to any character is purely coincidental. ये disclaimers आप देखते हैं कि बड़े prominently, no animals were harmed during the picturization of this film. इस तरह की चीजों को disclaimers. Why we can't, when we put out news which is sponsored, which is supported, क्योंकि मुझे और आपको तो समझ में आएगा, लेकिन a large section of the people who are illiterates, semi-literates, can they make out the difference? आपने कहीं कोने में लिख दिया that this is an impact feature या this is a this feature, कहीं कॉर्नर में आपने लिख दिया कि उनको लगेगा कि भाई यही शायद सच होगा, क्योंकि वो न्यूज फॉर्मेट में, या तो आप फॉर्मेट बदल दीजिए, उसको सिर्फ कहिए कि ये विज्ञापन का स्लॉट है. लेकिन नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये कहीं ना कहीं ये आपको दर्शाना होगा, वरना आप अपने पाठकों के साथ, दर्शकों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं. सो ये एथिकलिटी इज नॉट जस्ट, एंड देन इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग, फॉर मी बेसिक एथिक्स तो हम पढ़ाते हैं सब मीडिया इंस्टीट्यूशंस में, बट आप ट्रुथ, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, इसको आप मेंटेन करते हैं रिपोर्टिंग में. आई एडमिट दैट नो न्यूज़पेपर कैन क्लेम, एवरी न्यूज़पेपर हैज एन एडिटोरियल लाइन, they have an editorial page in which opinions are reflected, होना भी चाहिए. But when it comes to news, I think that news cannot be, opinion is different, editorial is different. But news you will have to present all views. If somebody is capable of reading a newspaper, I think we should leave it to the wisdom not to put the perspective in the news. For me, the news angle is there, certainly yes. But I am talking about mixing views with news. For me, that is unethical. Give me the news as it is. Let me judge. अगर मैं ये फैसला कर सकता हूँ कि मेरा पार्षद कौन होना चाहिए, मैं फैसला कर सकता हूँ कि मेरा पंचायत का मेंबर कौन होना चाहिए, मेरा विधायक कौन होना चाहिए, मेरा सांसद कौन होना चाहिए, अगर मेरे अंदर एक मतदाता के नाते, चाहे मैं शिक्षित हूँ, अशिक्षित हूँ, मुझे आपने ये अधिकार दे रखा है, तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि मैं एक अखबार से जो है अपना जो है मत नहीं तैयार कर सकता, कि आपको मुझे जो है खबर में भी मुझे समझाना पड़ेगा अपने विचारों को मिश्रित करके. विचारों को मिश्रित समाचार के साथ नहीं, ये अनएथिकल है जहां आप मिश्रित करते हैं विचारों को. आप डिस्कशंस करिए, डिबेट्स कराइए, आप एडिटोरियल दीजिए, ओपिनियन पीसेस लिखवाइए, सब कुछ करिए. न्यूज अनडाइल्यूटेड दीजिए. न्यूज के जो कोर प्रिंसिपल्स है, दैट इज एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, आंकड़े बिल्कुल सही दीजिए, एक्यूरेट दीजिए और निष्पक्ष होकर दीजिए न्यूज के माध्यम. दैट इज, you know, at the end of the day, my voting preferences should not find a reflection in my copy. I have also been a hardcore field journalist. I've, you know, traveled across the globe. I've, you know, covered elections, Lok Sabha elections, assembly elections, covered parliament, state assembly. But one thing was there, that my voting preference, everybody has. We are all individuals with our own ideologies, with our own thought process, our own vision of the country, you know, how the country should be run, what are the priorities for a country. We all have our own, you know, ideas. But it should not find reflection in my news reportage. When I go to the ground, I should be a very independent and fair person who should be reporting what I see. If a good thing is being done by the government, let us report that this is a good thing, and if it is bad, let us report that. मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रकार को पत्रकार ही होना चाहिए, पक्षकार नहीं होना चाहिए. पत्रकार को जो है पक्षकार नहीं होना चाहिए, और पत्रकार का एक ही पक्ष है, उसका न सत्ता पक्ष है न विपक्ष है, उसका पक्ष जन पक्ष है.
जनहित में क्या है, वो व्यापक जनहित हुआ उसको देखने की जरूरत है। और अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि शायद मेरा समय जो है समाप्त हो रहा है, कि देखिए आई डोंट बिलीव, जो पहला एक that media always has to be have an adversarial relationship with anything that is associated with power, because perhaps that was very relevant when we were dealing with dictatorships, when we were dealing with what I call an alien regime. But today you have elected governments at the state and center, so they are not, let us not treat them as enemies of the people and ourselves as the sole custodians of the people's interest. So if they are doing a good job, yes, they are doing a good job, and if they are doing a bad job, let us expose them. But our primary role is not only to inform people but also to educate people and to inspire them. ये भी ethics में आता है। आप जो है सिर्फ एक नेगेटिव नैरेटिव लेकर किसी भी चीज को लेकर आप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आप डील कर रहे हैं सोसाइटी से, आप गवर्नमेंट से नहीं डील कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज कीजिए, अगर उनका गलतियां हैं तो एक्सपोज कीजिए, लेकिन आप जो डील कर रहे हैं, आपका जो पाठक है वो आम नागरिक है, आपका जो दर्शक है आम नागरिक है, उसको हतोत्साहित मत करिए, उसकी उम्मीद को खत्म मत करिए, उसका लोकतंत्र में विश्वास को खत्म मत करिए। यू आर ए पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप ये हमने फिल्मों में भी देखा, पूरे पॉलिटिकल क्लास के प्रति एक नकारात्मकता, हमने एक ऐसा एक नैरेटिव यूज किया कि है मेजॉरिटी परसेप्शन है, देयर इज अ परसेप्शन, बट देयर हैव बीन गुड पॉलिटिशियंस आल्सो सिंस इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, उससे पहले भी अच्छे पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं। पुलिस हमेशा देर से ही पहुंचती है, कितना बढ़िया काम पुलिस कितने जगह कर रही है। लेट अस नॉट बिल्ड ए नैरेटिव अराउंड दिस थिंग्स कि हाँ ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि अच्छे काम जहां होते हैं वो भी दिखाना जरूरी है। समाज में एक हाँ समस्याएं हैं और उससे हमें जूझना है, लड़ना है, एक्सपोज करना है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन समाज की जो आंतरिक शक्ति है, जो आंतरिक ऊर्जा है, we have to ensure that is also part of media ethics, that we have to inspire the people. तभी तो अगर बदलाव भी होगा तो बदलाव वही तो ला पाएंगे जब उनके अंदर वो आत्मविश्वास है। आप उनके आत्मविश्वास को ही खत्म कर देंगे, उनके कॉन्फिडेंस को ही खत्म कर देंगे। नहीं, आप सब मरने वाले हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद है, ऐसे में तो फिर उम्मीद का कोई किरण नहीं। We are dealing with society at large. We have a larger responsibility to the society, and that includes, apart from our role as informers, as people who are vigilant citizens, who tell the citizens about the wrong things, there are also good things in the society which are happening. A lot of good people, इसी पैनल में इतने अच्छे लोग बैठे हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बल पर, हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी बहुगुणा साहब जो है चिपको आंदोलन के, वो अब हमारे बीच में नहीं। ऐसे न जाने कितने लोग, आई कैन गिव एग्जाम्पल्स, जिन्होंने अपना निस्वार्थ भावना से समाज को जो है समर्पित अपना काम कर रहे हैं, इस कोरोना के दौरान भी कर रहे हैं। उनको भी हाईलाइट करिए, उनके, ताकि पता चले कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, उम्मीद है, कई लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम भी हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि सरकारों पर ही हम सब निर्भर है हर चीज के लिए। नहीं, बहुत कुछ पीपल्स इनिशिएटिव्स भी हो रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल आई बिलीव दैट yes, media has been doing a commendable job since independence, and we have to ensure that the media remains fiercely independent. उसके जो स्वतंत्रता है, मैं स्वतंत्रता ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्वच्छंदता नहीं। There's a difference between freedom and license. We need to understand. So, वो स्वतंत्रता को वो बरकरार रखे, कायम रखे, लेकिन साथ में ही उसका जो एक सामाजिक सरोकार है, समाज की जो आत्मशक्ति है, उसको उभारने में भी एक अहम भूमिका वो जरूर निभाएगी। और आने वाले, देखिए, वी आर एन एवोल्यूशनरी मीडिया, हम इवॉल्व कर रहे हैं। एक टाइम वो भी था जब हमने लाइव टेलीकास्ट किया 26/11 का मुंबई अटैक को,
लेकिन बाद में जो है हमने एहसास किया, मीडिया में अंतर्मंथन हुआ, इंट्रोस्पेक्शन हुआ कि नहीं, लाइव नहीं एंटी टेरर ऑपरेशंस को हमें करना चाहिए। हमने उसको बदला। अब नहीं, कोई भी आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी एंटी ऑपरेशंस होता है, एंटी टेरर, एंटी नक्सल, कुछ भी ऑपरेशन होता है, कहीं भी लाइव नहीं दिखाते हैं, डेफर्ड लाइव दिखा देते हैं। तो कई चीजें होती है। तो we are at an evolutionary stage. I am sure that in the times to come we will, but as I said that आपको भी जो पॉपुलर मीडिया, पीपल्स मीडिया को भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, so long as media is dependent on advertisements, on revenue from other quarters. जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है मीडिया का, उसको आपको समर्थन करना पड़ेगा। आप ये उम्मीद करेंगे कि 40 रुपए के अखबार में आप सिर्फ, जिसका खर्चा आता है उसमें सिर्फ 4 रुपए आप देंगे, 36 कोई और देगा, और उस 4 रुपए में वो आपके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा, तो मैं समझता हूं कि हम गलतफहमी के बहुत बड़े शिकार हैं। वी हैव टू रिमेंबर दैट लेट अस सपोर्ट, सस्टेन। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए पैसा खर्च करते हैं, पॉपकॉर्न के लिए खर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा मीडिया के लिए भी, थोड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए भी हम लोग सपोर्ट करें, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स अ रियल प्लेजर बीइंग ऑन सच एन एमिनेंट पैनल। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.